Hello everyone, welcome you all in online teaching learning classes. Myself Miss Mrinali Dongre, Professor in Civil Engineering Department, NIT Polytechnic College, Nagpur. In today's session, I am going to deliver lecture on topic 4.6, that is methods of disposal. Now the course outcome: implement the relevant method for disposal of industrial waste. Program outcome is that PO1, PO4, PO5, PO6 and PO7. Unit outcome: after completion of this video lecture, student will able to compare the characteristics of the given type of industrial waste with other given type of waste material. Now, the vision of the program: to impart excellent civil engineering skill to develop employable civil diploma engineers. Mission of the department: M1, imparting the modern technical skill as per the requirement of the industry to improve employability. M2, to develop social and environmental responsible civil engineers. M3, effective implementation of teaching learning process to benefit student. Now, first of all, we will discuss about method of disposal. Following are the various technologies or methods to be used disposal: manual separation or salvage. First method is manual separation or salvage method. Second method is that mechanical volume reduction or compaction. Third, incineration or thermal volume reduction. Fourth, open dumping, tipping. Control or sanitary landfilling. Destructive distillation, land farming, biodegradation. Now first is that is manual separation or salvage. In this method, prior to ultimate disposal, various components are being separated. इस मेथड में डिस्पोजल के पहले, प्रायर टू अल्टीमेट डिस्पोजल के पहले वेरियस कंपोनेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड. हमें कंपोनेंट पार्ट को सेपरेट करना पड़ेगा मैन्युअली सो एज टू अचीव द रिकवरी एंड रीयूज ऑफ मटेरियल, जिसके वजह से क्या अचीव होगा? रिकवरी और रीयूज ऑफ द मटेरियल. फॉर्म एग्जाम्पल लाइक दैट इज कार्डबोर्ड, ग्लास, बॉटल. हमने कार्डबोर्ड अलग किया, ग्लास बॉटल अलग की. देयर आर्टिकल्स, न्यूज़ प्रिंट्स, मेटल्स, वुड, हाई क्वालिटी पेपर, एल्यूमिनियम कैन एक्सेट्रा आर सेपरेटेड और सॉर्टेड मैन्युअली और सैवलेज फॉर रीसेल और रिसाइकलिंग. और फिर क्या होता है, सबसे पहले सबको अलग करना पड़ेगा और जो सैलवेज फॉर रीसेल कर सकते हैं हम लोग और रिसाइकलिंग के कुछ मटेरियल को भेज सकते हैं. तो ये तो था मैनुअल सेपरेशन और सैलवेज. नेक्स्ट मेथड है मैकेनिकल वॉल्यूम रिडक्शन. It is next method and carried out after separation of reusable or disposal element or articles manually. In this method, compactors are being used to compress remaining solid waste material directly into a large container. अब इस method में क्या होगा, ये next method है और after separation of reusable और disposable element. मतलब हमने अगर सेपरेट कर लिया रीयूजेबल मटेरियल को और डिस्पोजेबल एलिमेंट्स को और आर्टिकल्स को मैन्युअली, उसके बाद क्या करना है? अब इस मेथड में कॉम्पैक्टर आर बीइंग यूज द कॉम्प्रेस द रिमेनिंग सॉलिड वेस्ट. हमने सबसे पहले अलग कर दिया, ठीक है. अब हम लोग कॉम्पैक्टर का यूज़ करेंगे. कॉम्पैक्टर का यूज़ क्यों करेंगे? कॉम्प्रेस द रिमेनिंग सॉलिड वेस्ट मटेरियल. जो अब रिमेनिंग सॉलिड वेस्ट मटेरियल बचा है उसको क्या करना पड़ेगा? कॉम्प्रेस करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ कॉम्पैक्टर डायरेक्टली इनटू अ लार्ज कंटेनर. एक बहुत बड़ा कंटेनर रहेगा जिसमें से हमने पूरे सॉलिड वेस्ट जो भी रीयूजेबल है, डिस्पोजेबल एलिमेंट्स है और आर्टिकल्स है उसको मैन्युअली सेपरेट कर लिए. अब जो बचा हुआ सॉलिड वेस्ट है उसको कॉम्पैक्टर की मदद से हमें कॉम्प्रेस करना है और वो भी लार्ज कंटेनर में.
कॉम्पैक्शन ऑफ सच सॉलिड वेस्ट इंक्रीज द यूजफुल लाइफ ऑफ लैंडफिल। कॉम्पैक्शन के वजह से क्या होता है, सच सॉलिड वेस्ट जो है वो उसका यूजफुल लाइफ जो है इंक्रीज हो जाती है। Now next method is that thermal volume reduction or incineration. In this method highly combustible waste such as paper, rubber, जो highly combustible waste है जैसे कि पेपर हो गया, रबर, प्लास्टिक, कार्डबोर्ड, वुड, स्क्रैप, फूड वेस्ट, कार्टून्स एक्सेट्रा टेकन फॉर इंसिनरेशन। जितने भी ये मतलब प्रोडक्ट या मटेरियल बोल सकते हैं हम इसे, उसे इंसिनरेशन में मतलब लेना है, जलाना है। इट मीन्स दिस combustible waste are finally there is a volume reduction. It means that जितने भी combustible waste है वो finally उसका volume reduct हो जाता है of such waste by burning or incineration. This process of incineration involve gases which rise the level of the air pollution. But ये जब method हो रही है, ये process जो है incineration का, उसमें क्या होता है, गैसेस रिलीज हो जाती है जिसके वजह से राइज द लेवल ऑफ द एयर पॉल्यूशन हो सकता है। एंड हैंस प्रॉपर कंट्रोल इक्विपमेंट्स नीड टू बी इंस्टॉल्ड टू बी प्रिवेंट कंटेमिनेशन ऑफ द एनवायरमेंट। Now next is the open dumping. In this method the solid waste are laid in a low-lying area which is away from the town of the cities. It is most cheap and economical method of disposal. In this method the solid waste are laid in a low-lying area. ये method में क्या होता है, solid waste को लो लाइंग एरिया में लिया जाता है विच इज़ अवे फ्रॉम द टाउन, और वो टाउन से बहुत दूर होना चाहिए वो एरिया। इट इज़ मोस्ट चीप होना चाहिए। इकोनॉमिकल मेथड ऑफ डिस्पोजल वहाँ पे यूज़ होगी, एक्सटेंसिवली यूज इन इंडिया। ओके, बट देयर आर मेजर डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस मैथड। इस मेथड की मेजर डिसएडवांटेजेस है जो कि इट अफेक्ट ऑन पब्लिक हेल्थ ड्यू टू द क्रिएशन ऑफ फाइल्स, मॉस्किटो फ्लाइज एंड मॉस्किटोज, रैट्स एंड अदर पेट्स। ओके, देन जो कि अफेक्ट करता है पब्लिक हेल्थ को भी, एनवायरनमेंट को भी, जिसकी वजह से फ्लाइज एंड मॉस्किटोज के वजह से, रैट्स के वजह से एंड अदर पेट्स के वजह से। ठीक है। ओपन डंपिंग नीड लार्ज लैंड एरिया। ओपन डंपिंग के लिए ज़रूरत रहती है लार्ज एरिया की, लार्ज लैंड एरिया की। यू हैव टू सी द इमेज ऑफ द ओपन डंपिंग। इसमें ओपन डंपिंग हो रहा है जिसमें बहुत ज़्यादा लार्ज एरिया यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं और यहाँ पर डंप कर रहा है विद द हेल्प ऑफ द ट्रक। नाउ कंट्रोल ट्रिपिंग। इन दिस मेथड द सॉलिड वेस्ट आर कंपैक्टेड एंड स्प्रेड इन अ थीन लेयर। इसमें क्या होता है, जो सॉलिड वेस्ट को थीन लेयर में हम लोग स्प्रेड करते हैं। ईच लेयर इज़ यूनिफॉर्मली कवर बाय द लेयर ऑफ द सॉइल। जितनी लेयर हम लोग डालेंगे उतनी लेयर को सॉइल से कवर अप किया जाता है। द फाइनल लेयर इज़ अ कवर बाय फाइनल लेयर कवर अबाउट earth material so as to avoid a rodent from the burrowing into a reuse and a scattering. Okay, अब इसमें जो है, ये जो मेथड हमने आपको बताया, इसमें जो कंट्रोल ट्रिपिंग है, इसमें क्या होता है, हर लेयर में सॉलिड वेस्ट डालेंगे, उसके बाद एक लेयर होगी, उसके बाद हम लोग सॉइल, इसके बाद एक लेयर सॉलिड वेस्ट की, उसके बाद सॉइल, और जो ऊपर की लेयर है उसको पर्टिकुलरली प्रोटेक्ट करते हैं सॉइल से, ताकि रोडेंट ऑफ द ब्रोइंग एनिमल, मतलब कोई भी स्पैरो एंड ऑल, वो जो भी है उसमें अपना डंक ना लगाए, और वो जो हमने लैंड फिलिंग किया है उसमें ज़्यादा स्मेल ना आए, इसके वजह से प्रोटेक्ट करता है। ये जो सॉइल है वो प्रोटेक्ट करता है। Destructive distillation. In this method of disposal the solid waste are heated under a anaerobic condition. In this method of disposal the solid waste are heated under anaerobic condition. अब इस मेथड में क्या होता है, ये जो डिस्पोजल वाली मेथड है, सॉलिड वेस्ट को हीट किया जाता है अंडर एनारोबिक कंडीशन में। इट मीन्स बर्निंग विदाउट ऑक्सीजन। इसका मतलब है बर्निंग तो करेंगे बट विदाउट ऑक्सीजन के। द वेरियस ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स ऑफ द सॉलिड वेस्ट आर डिवाइडेड इनटू अ गैसियस फ्रैक्शन एंड लिक्विड। उसके बाद डिवाइड किया जाता है इनटू अ गैसियस फ्रैक्शन या फिर लिक्विड में।
लैंड फार्मिंग क्या होता है? इन दिस मेथड ऑफ डिस्पोजल द बायोडिग्रेडेबल इंडस्ट्रियल वेस्ट आर ट्रीटेड बाय बायोलॉजिकल, फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस ऑन द सर्फेस ऑफ द सॉइल। इसमें पूरा प्रोसेस होता है डिस्पोजल का, उसमें बायोडिग्रेडेबल इंडस्ट्रियल वेस्ट आर ट्रीटेड बाय बायोलॉजिकल, फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस ऑन द सर्फेस ऑफ द सॉइल। इस तरीके से इसमें ट्रीट किया जाता है। नाउ द समरी ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन, हमने देखा पहले मेथड ऑफ डिस्पोजल क्या है, कौन सी मेथड है। उसमें फर्स्ट मेथड है मैनुअल सेपरेशन ऑफ सेल्वेज, थर्ड है मैकेनिकल वॉल्यूम रिडक्शन, फोर्थ है थर्मल वॉल्यूम रिडक्शन और इंसिनरेशन, देन ओपन डंपिंग, destructive distillation, land farming. Now these are the questions of MSBT and your assignment also. First, explain the collection of disposal of industrial waste. What are the various control measure of industrial waste and explain in brief. Explain the disposal of industrial waste. Thank you.